Hello, dear students. Welcome back to the YouTube channel of Winsome International School. My name is Shaheen, and today we are going to cover the second part of your chapter 3, that is two stories about flying. पहली story इसकी कौन सी थी? If you remember, it was his first flight. Okay? और जो second part है इस story का, इस chapter का, उसका नाम है Black Aeroplane. Have you ever seen a black aeroplane? So it sounds quite weird and mysterious, right? लेकिन इसका नाम Black Aeroplane क्यों है, ये हमें तब पता चलेगा जब हम थोड़ा सा इस चैप्टर की डेप्थ में जाएंगे और इसको पढ़ेंगे. Clear? This story is written by Frederick Forsyth. So जैसे हम हमेशा करते हैं, before reading the story, let us learn about the author of this story. Clear? So Frederick McCarthy Forsyth, he was born on 25th of August 1938, all right? And he is still alive. That is why only the year of his birth is given. He is an English novelist and journalist. He is best known for thrillers such as The Day of the Jackal. These are the names of his works: The Odessa File, The Fourth Protocol, The Dogs of War, The Devil's Alternative, The Fist of God, Icon, The Veteran, Avenger, The Afghan, The Cobra, and The Kill List. So even the titles sound so interesting. So these are some of his works which I mentioned here. Forsyth's works frequently appear on bestseller lists, and more than a dozen of his titles have been adapted to film. Means many of his titles, many of his works, these have been taken and adapted to films. यानी कि इनकी काफी works पे movies भी बन चुकी हैं. By 2006, he had sold more than 70 million books in more than 30 languages. So you can imagine how renowned writer he is, कितने famous and कितने prolific writer Frederick Forsyth हैं. That means इनकी जो story है, definitely ये भी एक बहुत ही interesting message लिए है जो हम पढ़ने पे पता करेंगे. Clear? All right. So अब हम टेक्स्ट जो हमारा है रेगुलर जो हम स्टार्ट करते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक का जो मेन टेक्स्ट है वहीं से वी आर गोइंग टू बिगिन विद द स्टोरी, covering all the lines, all the words, and not leaving anything. Clear? So I hope you are going to pay attention to it so that आपसे कोई भी part miss ना हो. All right? Let's begin. So Black Aeroplane. The moon was coming up in the east behind me. All right. So the narrator, what he is describing, he is saying the moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. यानी यहाँ पे जो narrator है, that means he's in the sky. ठीक है? That means he is a पायलट. ठीक है? तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि the moon was coming up, यानी कि रात जो थी वो और भी ज्यादा घनी हो रही थी. ऑल राइट. और स्टार्स और भी ज्यादा ब्राइटली शाइन कर रहे थे. तो आप हमें इमेजिन कर सकते हैं स्टार्स ज्यादा शाइन कब नजर आते हैं शाइन करते हुए, जब ज्यादा डार्कनेस होती है. क्लियर? सो वो यही बताना चाह रहे थे कि एकदम रात का वक्त है और ही इज इन द स्काई एंड ही इज फ्लाइंग हिज प्लेन. There wasn't a cloud in the sky, यानी कि आसमान एकदम साफ था, कोई बादल नहीं थे. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. और यहाँ पे जो पायलट है वो बहुत ही खुश हैं. The sleeping countryside यानी कि पूरा शहर सोया हुआ है और मैं अकेला यहाँ पे स्काई में हूँ और अपनी प्लेन फ्लाई कर रहा हूँ. तो वो खुश क्यों है फिर अकेले प्लेन में फ्लाई करते हुए? Why is he happy? What is the reason behind his happiness? क्या रीजन है? I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. Means वो फ्रांस से वापस कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड जा रहे थे. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. So अब जो यहाँ पे इन्होंने बोला था that I was happy. क्यों हैप्पी थे? तो रीजन यहाँ आ गया. He was dreaming of his holiday. वो अपनी हॉलीडे प्लान कर रहे थे. And looking forward to being with my family. और वो ये सोच रहे थे कि अब यहाँ से मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, अब मेरी जो हॉलीडे होगी मैं अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड करूंगा. तो वो अपनी जो हैप्पीनेस है अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने की वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. दैट इज द रीजन कि वो खुश हैं. क्लियर? I looked at my watch.
1:30 in the morning. क्या टाइम हुआ था? 1:30 in the morning. All right? यानी कि रात के 12 बजे के बाद में 1:30 हो चुका था. After midnight, that means the next day, and he was going back to his home. और कहाँ था पायलट का होम? कहाँ था उनका घर? It was in England. ठीक है, वहीं उनकी फैमिली थी जहां पे he was imagining to spend his weekends, or you can say holidays. I should call Paris control soon, I thought. और अगर आपको पता होगा जब पायलट्स उनको लैंड करना होता है या फ्लाइट्स को टेक ऑफ करना होता है तो वो कंट्रोल रूम्स के कांटेक्ट में रहते हैं, ऑलराइट, और वो इंफॉर्मेशन उनसे एक्सचेंज करते रहते हैं सो दैट उनको भी इंस्ट्रक्शंस मिलते रहे कि वो सही जा रहे हैं, कोई वेदर प्रॉब्लम्स तो नहीं होने वाली है. एंड दे ऑल्सो इन्फॉर्म देम कि हाँ अब हम लोग फ्लाइट टेक ऑफ करने वाले हैं, अब हम लैंड करने वाले हैं. ऑलराइट, तो अब यहाँ पे पायलट ने ये सोचा, नरेटर ने ये सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम जो है कांटेक्ट करना चाहिए बिकॉज वो फ्रांस से लीव कर चुके थे और इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे. As I looked down past the nose of the aeroplane, what do we mean by nose of the aeroplane? Aeroplane के सामने का जो एकदम पार्ट है, so he was looking towards that side. ठीक है, एकदम आगे उन्होंने देखा प्लेन के. I saw the lights of a big city in front of me. और उन्हें नजर आया कंट्री जो एक थी, बहुत ही बड़ा शहर था और पूरा शहर जो था लाइट्स उसमें जो जल रही थी, वो पूरा जो शहर था it was shining brightly. ठीक है, due to its lights. रात के टाइम पे अगर आपने देखा होगा अगर शहर को किसी ऊंचाई से, और अगर आपने कभी फ्लाइट में अगर आपने रात में ट्रैवल किया है तो देखा होगा जो शहर नजर आते हैं वहां पे रात में सिर्फ लाइट्स नजर आती है, राइट, तो वो एकदम जगमगाता हुआ लाइटनिंग सा नजर आता है. तो यहाँ पे भी पायलट अपना वही एक्सपीरियंस डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने देखा जब मैंने एरोप्लेन के फ्रंट नोज को देखा वहां से मुझे पूरा शहर जो है एक जगमगाता नजर आ रहा था. I switched on the radio and said, which radio is he talking about? The radio which is used to make contact. ठीक है, वो रेडियो जिससे ये लोग जो पायलट्स है वो कांटेक्ट करते हैं कंट्रोल रूम्स के साथ में. तो वहां पे उन्होंने अपना रेडियो स्विच किया और कहा, Paris Control Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. Alright, so this is the way कि अगर उनका मैसेज कंप्लीट हो गया है तो लास्ट में ओवर बोल के एक इंडिकेशन होता है, yes now my message is complete, I am waiting for yours. ठीक है, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं. तो ये यही बता रहे हैं कि मैं जो हूं पायलट हूं डकोटा DS088 का, और क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूं. ओवर. The voice from the radio answered me immediately. और उसी वक्त immediately उन्हें रिस्पॉन्स मिला, DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088, over. और उन्हें रिस्पॉन्स में मिला, उनको इंस्ट्रक्शंस मिले कि he ought to turn his Dakota 12 degrees west. ठीक है, उन्हें इंस्ट्रक्शन क्या मिला कि उन्हें अपनी प्लेन को जो है 12 degrees west टर्न करना पड़ेगा. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. All right, so ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पायलट्स के लिए चेक करना, उनका फ्यूल टैंक, कंपस क्या होता है? इट इज अ डिवाइस टू चेक डायरेक्शंस. ठीक है, कंपस किस चीज में हेल्प करता है? डायरेक्शंस बताने में या डायरेक्शंस लोकेट करने में हेल्प करता है. तो उन्होंने अपना मैप चेक किया, कंपस चेक किया, और उसके बाद एक फ्यूल टैंक ओवर हो चुका था. हर प्लेन में 2 फ्यूल टैंक्स होते हैं, सो ऑलरेडी एक फ्यूल टैंक ओवर हो चुका था. ही वाज आउट ऑफ दैट वन फ्यूल टैंक, इसलिए उन्होंने अपना जो लास्ट और सेकंड फ्यूल टैंक बचा था उसको ही स्विच टू दैट, उन्होंने वो अपना सेकंड फ्यूल टैंक ऑन कर लिया. क्लियर? और जैसे कि उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि 12 डिग्रीज वेस्ट उन्हें अपना डकोटा टर्न करना था, उन्होंने उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया. क्लियर? You can see this dark image, all right? इसी तरह से डार्कनेस था और सिर्फ उनका एक ही जो प्लेन था, it was flying in the sky. I'll be in time for breakfast, I thought. और जैसे जैसे मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, मैं फ्लाई कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस कर रहा था, तो मेरे दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे थे? हाँ, मैं ये अज्यूम कर रहा था कि मैं टाइम पे ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो पहुंच ही जाऊंगा घर. आई वॉज प्रीटी श्योर अबाउट इट. मेरे को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि जिस तरह से मैं चल रहा हूं और जितनी डिस्टेंस मैंने कवर कर ली है, अब मुझे लगता है कि मैं ब्रेकफास्ट तक अपने घर पहुंच जाऊंगा. कहाँ था उनका घर? इंग्लैंड में. ओके, और उन्होंने कहाँ से टेक ऑफ किया था? उन्होंने टेक ऑफ किया था फ्रांस से. क्लियर?
a good big English breakfast. Why is he admiring this good big English breakfast? Because हम सभी को अपने घर का ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है, चाहे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या खाना, मील, कुछ भी बोल दो। हम सब whenever we are out, अगर हम बाहर रहते हैं एंड हमें मौका मिलता है कि हाँ नाउ हॉलीडेज आर कमिंग अराइविंग एंड हम अपने घर जाने वाले हैं छुट्टियों में, सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट वी लाइक अबाउट आवर होम? खाना, घर का खाना। Everyone misses, right? सबको घर के खाने की बहुत याद आती है। Similarly, जो नरेटर है हमारे, he belong to England, वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। That is why he was missing that English breakfast. इंग्लैंड का जो उनके घर का ब्रेकफास्ट था वो मिस कर रहे थे। So he was just imagining this good बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मुझे बस वो चाहिए, ठीक है। सो बस यहाँ पे क्या चीज डिनोट कर रहे हैं कि घर का खाना, ही वॉज ऑल्सो मिसिंग, उनको भी घर का खाना खाने की याद आ रही थी, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने घर इंग्लैंड पहुंचना चाहते थे। क्लियर? Everything was going well. It was an easy flight. सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था और पायलट के लिए वो एक easy flight थी। No stress, no worries, and he was very calm and patient. And उन्हें पता था कि अब वो घर पहुंचने वाले हैं। Paris was about 150 kilometers behind me. यानी कि वो पेरिस को 150 किलोमीटर्स पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके थे, 150 किलोमीटर्स आगे आ चुके थे पेरिस से। तो अब वो और भी ज्यादा होपफुल थे कि हाँ अब मैं जल्दी पहुंचने वाला हूं। When I saw the clouds, और जब वो पेरिस से 150 किलोमीटर्स आगे आ चुके थे तब क्या देखा उन्होंने? He saw clouds. Clouds, normal clouds नहीं, कैसे थे? Storm clouds, यानी कि वो clouds इंडिकेट कर रहे थे एक तूफान का, ठीक है। They were huge, बहुत बड़े बड़े बादल थे। They looked like black mountains, और यहां पे कंपैरिजन किया गया है। Clouds जो है, they looked like black mountains. So can you tell me कि जहां पे कंपैरिजन होता है और like का यूज होता है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? Yes, it is simile, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? सिमिली यूज हुआ है, बिकॉज यहाँ पे नरेटर ने क्लाउड्स को ब्लैक माउंटेन्स के साथ में कंपेयर किया है। क्लियर? सो वो माउंटेन्स एकदम बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे लग रहे थे, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। ऐसा लग रहा था कि मेरे प्लेन के सामने बड़े बड़े माउंटेन्स है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, काले पहाड़ हैं जिनके आर पार में कुछ नजर देख नहीं पा रहा था। आई कुडंट सी एनीथिंग अक्रॉस दोज बिग माउंटेन लाइक क्लाउड्स। उनके आसपास आर पार मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं ये एक चीज तो जानता था कि मैं इन क्लाउड्स के ना तो ऊपर से निकल सकता हूं और ना ही इनके थ्रू निकल सकता हूं, ना इनके बीच में से निकल सकता हूं, बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल। कुछ नजर ही नहीं आएगा ड्यू टू डार्कनेस। And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और मेरे प्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं बचा था कि मैं उन क्लाउड्स की डिस्टेंस को अवॉइड करके नॉर्थ या साउथ से होकर इतना लंबा डिस्टेंस लेकर के निकलूं। मेरे पास सिर्फ इतना ही फ्यूल टैंक में इतना ही फ्यूल बचा था कि मैं एकदम उनके अक्रॉस जा सकता था, उनके थ्रू जा सकता था, बट दैट वॉज वेरी रिस्की। वो बहुत रिस्की हो सकता था। I ought to go back to Paris, I thought. So he was like कि अब मुझे लगता है कि मुझे वापस पेरिस जाना पड़ेगा, क्योंकि जो माउंटेन लाइक क्लाउड्स है ये अलाउ ही नहीं करेंगे कि मैं आगे फॉरवर्ड आगे जाऊं, ठीक है, टू मूव अहेड, और मैं इनको क्रॉस करके अपने घर तक पहुंचूं। सो एक थॉट क्या आया उनके दिमाग में कि शायद मुझे वापस 150 किलोमीटर पीछे चले जाना चाहिए, पेरिस चले जाना चाहिए, शायद वो मेरे लिए सेफ रहेगा। बट I wanted to get home. लेकिन एक चीज जो उनके दिमाग में बैठ चुकी थी वो क्या थी? मुझे घर जाना है। I wanted to go home. All right, I know आपके दिमाग में कौन सा डायलॉग चल रहा होगा। So he was also like मुझे घर जाना है। I wanted that breakfast. मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। कौन सा ब्रेकफास्ट चाहिए था? घर का। मुझे घर में ही अपने ब्रेकफास्ट करना था, बिकॉज आई वॉज वेरी एडमेंट ओवर इट। मैं पहले से सोच चुका था कि मुझे घर पहुंचना है। I'll take the risk. क्या डिसाइड किया पायलट ने? That he would take the risk. मैं रिस्क लूंगा। किस चीज का रिस्क लूंगा? रिस्क क्या था? उन माउंटेन लाइक क्लाउड्स के आर पार निकलना, ठीक है। वो पहाड़ जैसे जो काले बादल थे
उनके आर पार निकलना ये सबसे बड़ा रिस्क था। और यही पायलट ने डिसाइड किया, नहीं, आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। I thought and flew that old Dakota straight into the storm. और उन्होंने क्या किया, बिना कोई सेकंड थॉट दिए सीधा अपना डकोटा जो है उन ब्लैक क्लाउड्स के अंदर भेज दिया। Inside the clouds everything was suddenly black. और जैसे ही मैं उन बादलों के बीच में पहुंचा, सब कुछ क्या था, एकदम डार्क, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एंड इट वॉज वेरी ऑब्वियस, पायलट पहले से ही ये चीज अज्यूम कर चुके थे कि जब मैं इन काले बादलों के अंदर जाऊंगा मुझे कुछ नजर नहीं आएगा, और यही सबसे बड़ा रिस्क था उनके लिए। क्लियर? It was impossible to see anything outside the aeroplane. और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। So you can imagine the situation. आप सोच सकते हो कि पायलट के लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा कि उन्हें नहीं पता कि उनके आसपास क्या सिचुएशन है, कुछ भी नहीं पता बाहर क्या है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उन्हें कंटिन्यू अपनी प्लेन को भी फ्लाई करते रहना है क्योंकि फ्यूल भी लिमिटेड है। The old aeroplane jumped and twisted in the air. और as a result, उस तूफान के कारण क्या हुआ, जैसे ही वो उन बादलों के बीच में अपना प्लेन लेके पहुंचे, it jumped and twisted in the air. ठीक है, अचानक क्या होगी, जो प्लेन थी वो पलटने लग गई। I looked at the compass. मैंने कंपस देखा कि एटलीस्ट एक्चुअली मैं कौन से डायरेक्शन के अंदर हूं। मुझे कंपस देख के पता चल जाएगा कि एटलीस्ट डायरेक्शन कौन सी है, पता तो चले। I couldn't believe my eyes. मुझे यकीन नहीं हुआ अपनी आंखों पे। The compass was turning round and round and round. यानी कि कंपस कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बता रहा था, उसका जो नीडल था वो सिर्फ घूमे ही जा रहा था। ठीक है, यानी कि क्या हो चुका था, इट वॉज डेड। वो कंपस खराब हो चुका था, इसलिए वो कोई भी एक स्पेसिफिक लोकेशन डायरेक्शन नहीं बता रहा था। ठीक है, नाउ अब किससे कैसे पता चलेगा उसको कि वो कौन से डायरेक्शन में है, उसे जाना कहां पे है। इट वुड नॉट वर्क, क्योंकि अब कंपस तो काम नहीं करने वाला था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। एक और उनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, जो कंपस तो खराब हो ही गया था, यानी कि उनको डायरेक्शन तो पता नहीं चलने वाली थी। जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे कि रेडियो, जिससे वो कॉन्टैक्ट कर पाते, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी डेड हो चुके थे, खराब हो चुके थे। मींस ही कुडंट यूज एनी ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट्स। वो अपने प्लेन में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट थे उनमें से कुछ भी यूज नहीं कर सकते थे। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने ट्राई किया कि शायद मैं कोई कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर पाऊं कंट्रोल रूम के साथ में। सो ही स्टार्टेड टू ट्राई द रेडियो। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? There was no answer. ठीक है, उन्होंने सोचा मैं पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके देखता हूं, क्या पता वो मुझे कुछ इंस्ट्रक्ट कर दे, गाइड कर दे कि मैं कहां पे हूं रडार पे देख करके, लेकिन कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। और जैसा कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ठीक है, उनको पता भी नहीं था कि वेयर ही वॉज, कहां पहुंच चुका है आखिर पायलट। ही डिडंट नो अबाउट इट, नहीं पता। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। ठीक है, वो उस तूफान में कंप्लीटली खो चुके थे। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. तभी एक बड़ी मिस्टीरियस सी सिचुएशन हुई। क्या हुई, उन्हीं काले बादलों के अंदर जो काफी उसके क्लोज थे, he saw another aeroplane. उस पायलट ने एक और एरोप्लेन को देखा। It had no lights on its wings. उस एरोप्लेन के विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी। But I could see it flying next to me through the storm. लेकिन बस मैं ये देख पा रहा था कि वो एरोप्लेन मेरे पास उड़ रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब वो इन डार्क क्लाउड्स के बीच में आया, वो खिड़की के बाहर कुछ भी उनको नजर नहीं आ रहा था। He couldn't see anything. कुछ नहीं देख पा रहे थे। बट ऑल ऑफ अ सडन आखिर ये दूसरा प्लेन आया कहां से? ठीक है, जो सिर्फ जिसके विंग्स पे लाइट्स भी नहीं थे, जो एकदम नेक्स्ट टू द पायलट्स एरोप्लेन इट वाज फ्लाइंग, एकदम उन्हीं के पास में फ्लाई कर रहा था, और पायलट को ये प्लेन जो है नजर आ रहा था। ओके, आई कुड सी द पायलट्स फेस। मैं पायलट का फेस देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, और उसका फेस कहां पे था? मेरी तरफ ही था। I was very glad to see another person.
सो ये भी एक ह्यूमन नेचर है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, हम बहुत डिप्रेस्ड और डिप्रेसिंग सिचुएशन में हैं, हम सैड हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं इस ट्रबल के अंदर, एक और कंपेनियन आ गया है जो सेम प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, जो सेम ट्रबल को फेस कर रहा है, तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर, थोड़ी खुशी मिलती है कि चलो, आई एम नॉट द ओनली पर्सन, मैं अकेला नहीं हूं। यहाँ पे इस पायलट के साथ यही हुआ। इतने टाइम से वो इतना परेशान हो रहे थे कि मेरे साथ, मैं यहाँ फंस चुका हूं क्लाउड्स में, स्टॉर्मी क्लाउड्स के अंदर। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और पायलट को देखा उसी तूफान में फंसे हुए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई वॉज ग्लैड टू सी, वो खुश हो गए। ठीक है, He lifted one hand and waved. Wave का मतलब क्या होता है, हेलो। ठीक है, तो he lifted one hand, किसने लिफ्ट किया, दूसरे पायलट ने जो उस एरोप्लेन के अंदर था, उसने वेव किया इस पायलट की तरफ। Follow me, he was saying follow me, यानी कि दूसरे प्लेन के पायलट ने इस पायलट को यानी कि नरेटर को कहा follow me, मेरे पीछे आओ। He knows that I am lost, I thought, और मैंने सोचा कि शायद इस पायलट को पता है कि मैं इस तूफान में खो गया हूं। He is trying to help me, और शायद ये मेरी मदद करने के लिए आया है। I turned his aeroplane slowly to the north in front of my, he turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, यानी कि उस पायलट ने क्या किया, अपनी प्लेन को मेरी प्लेन के आगे लगा दिया, so that मैं उसको फॉलो कर पाऊं। ठीक है, so that it would be easier for me to follow him, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए उस पायलट को फॉलो करना। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. Again, can you identify कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे फिर से like का यूज हुआ है, कंपैरिजन हुआ है, तो सिमिली का यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिली है। तो पायलट इसको कैसे डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं बहुत खुश था, एक ओबीडियंट बच्चे की तरह मैं उसको फॉलो कर रहा था। जैसे एक बच्चा होता है ओबीडियंटली कहना मानते हुए अपने पेरेंट्स की बात को फॉलो करता है या उनके पीछे पीछे जाता है रास्ता देखने के लिए। सिमिलरली मुझे यही फीलिंग आ रही थी कि मैं इस पायलट को एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह फॉलो कर रहा हूं, एंड आई वाज हैप्पी विद दैट। मैं बड़ा खुश था, मैं चुपचाप एक ओबीडियंट बच्चे की तरह इस पायलट को फॉलो कर रहा था। क्यों? बिकॉज मुझे पता था कि ये मेरी हेल्प करने आया है और इसी की हेल्प से मैं इस तूफान को या इस तूफान से निकल पाऊंगा। क्लियर? After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. यानी कि half an hour हो चुका था और अभी भी वो black aeroplane जो था वो मेरे सामने ही था, यानी कि मेरे प्लेन के आगे ही था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. यानी कि अब मेरे फ्यूल टैंक में इतना ही फ्यूल बचा था कि वो अगले 5 से 10 मिनट और फ्लाई कर सकता था, उससे ज्यादा फ्यूल टैंक में फ्यूल नहीं बचा था। ठीक है, I was starting to feel frightened again. फिर से मुझे डर लगने लगा। Frightened again यानी मैं फिर से डरने लग गया कि अब तो सिर्फ 5 to 10 मिनट्स ही मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, इतना ही फ्यूल बचा है। What if I'm not able to reach my place on time? मैं नहीं पहुंच पाया तो, अगर ये फ्यूल बीच में ही खत्म हो गया तो। So there were so many questions going on in his mind. बहुत सारे questions थे जो उनके दिमाग में चल रहे थे कि अब लिमिटेड फ्यूल के साथ में मैं कितना ट्रैवल कर पाऊंगा। But then he started to go down and I followed through the storm. लेकिन तभी मैंने नोटिस किया वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लगा, यानी कि लैंड करने जाने लगा और मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. और तभी क्या हुआ, मैं बादलों से, उन काले बादलों से बाहर आ चुका था और मुझे सब नजर आने लग गया था। एंड मैंने क्या देखा, 2 long straight lines of lights। और एक्चुअली वो कहाँ पहुंच गया था, रनवे पहुंच गया था। रनवे कौन सी जगह होती है, जहां से प्लेन्स टेक ऑफ करती हैं और लैंड करती हैं। ठीक है, तो अब पायलट को रनवे नजर आ गया था। दैट मीन्स ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, वो अपनी डेस्टिनेशन यानी इंग्लैंड पहुंच चुके थे। एंड एयरपोर्ट आ गए थे। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। फ्रेंड कौन है यहाँ पे, पायलट ऑफ दैट ब्लैक एरोप्लेन। सो ही वांटेड कि मैं देखूं मेरा फ्रेंड जो है वो भी आ गया है या उसने भी अपनी प्लेन को लैंड किया है कि नहीं किया है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन जब मैंने देखा तो स्काई एकदम
इट वॉज एम्प्टी, कोई था ही नहीं स्काई के अंदर, आसमान में कोई भी नहीं था. देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं नजर आया मुझे. The black aeroplane was gone. वो black aeroplane जा चुका था. I could not see it anywhere. मैं कहीं भी नहीं देख पा रहा था. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota. यानी कि मैंने अपने प्लेन को लैंड किया एंड मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं था अपने डकोटा से निकलकर बाहर आने में. इनफैक्ट मैं बहुत खुश था क्योंकि इतने वक्त से मैं तूफान में फंसा हुआ था और अब मुझे क्यों सॉरी फील होगा अपने डकोटा से बाहर निकल में. इनफैक्ट आई वाज वेरी ग्लैड, आई वाज हैप्पी दैट आई एम आउट ऑफ द डकोटा near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. यानी कि जब उन्होंने लैंड किया वो कहाँ गए, कंट्रोल टावर में जो कंट्रोल सेंटर गए और वहां पे अ लेडी वाज सिटिंग देयर. उनसे पूछा कि भाई मैं कहाँ पे मैंने लैंड किया है और वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था. ठीक है, 2 क्वेश्चंस पूछे. पहला क्या था, वेयर आई वाज, मैं कहाँ पे हूँ, एंड हु द अदर पायलट वाज, और दूसरा पायलट कौन था मेरे साथ. I wanted to say thank you because जो पायलट था वो बहुत थैंकफुल था उस दूसरे पायलट को, बिकॉज उसी पायलट की हेल्प से वो उन काले माउंटेन लाइक क्लाउड से बाहर निकल के आ पाया था. She looked at me very strangely and then laughed. उस लेडी ने मुझे बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से देखा एंड she started laughing. वो हंसने लग गई. Another aeroplane up there in this storm. She said, दूसरा एरोप्लेन इस तूफान में. No other aeroplanes were flying tonight. और कोई भी प्लेन जो है वो आज रात को फ्लाई नहीं कर रहे थे. Yours was the only one. Yours was the only one I could see on the radar. रडार पे मुझे सिर्फ आपकी एक प्लेन ही नजर आ रही थी उड़ते हुए और कोई दूसरा प्लेन नहीं था आज. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying the storm without lights? So क्या-क्या questions उनके दिमाग में arise हुए जब उसको ये पता चला कि आज रात सिर्फ मेरा ही एक प्लेन था जो उड़ रहा था, उस प्लेन के अलावा दूसरा प्लेन था ही नहीं. तो अब क्या questions arise हुए, क्या-क्या question थे कि आखिर उसकी हेल्प किसने की सेफली पहुंचने में, जब उनके पास ना तो कोई कंपास था, ना ही रेडियो था और ना ही फ्यूल टैंक में ज्यादा फ्यूल बचा था. ठीक है, आखिर वो दूसरा पायलट था कौन उस ब्लैक एरोप्लेन के अंदर, ठीक है, जो कि इस तूफान में उड़ रहा था, वो भी विदाउट लाइट्स. जबकि क्या होता है कई बार अगर यहाँ पे तूफान की सिचुएशन होती है, बहुत डार्क हो जाता है, तो इनफैक्ट हम लोग अपनी गाड़ियां भी चलाते हैं तो उनकी लाइट्स ऑन कर लेते हैं सो दैट विजिबिलिटी रहे. लेकिन वो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसकी लाइट्स तो ऑफ थी. इतनी तूफान में वो कर क्या रहा था विदाउट लाइट्स के, है ना. और दूसरा क्वेश्चन अगर हम सोचें तो क्या हो सकता है कि इतनी देर से उस पायलट को उस तूफान में ब्लैक क्लाउड्स में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तो फिर वो ब्लैक एरोप्लेन जो कि जिसपे लाइट्स भी नहीं थी वो कैसे नजर आया, उस पायलट का फेस कैसे नजर आया, राइट. सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट अराइजेस इन आवर minds. All right, so this was the chapter, this was the story Black Aeroplane. और इसका conclusion हमें ये मैसेज देता है कि एक्चुअली कोई पायलट था ही नहीं वहां पे. It was he himself, it was the pilot himself who helped. जो उसकी इनर स्ट्रेंथ थी, ठीक है, और जो उसका डिटर्मिनेशन था. क्या डिटर्मिनेशन था कि नहीं, मुझे कैसे भी करके अपने घर पहुंचना है, आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा चाहे जो भी हो, लेकिन मैं आई एम गोइंग टू गो अक्रॉस दीज क्लाउड्स, मैं इन बादलों के आर पार होते हुए जाऊंगा, रिस्क लूंगा, लेकिन अपने घर पहुंच के रहूंगा. ठीक है, तो ये उनका जो एक इनर स्ट्रेंथ था, जो स्पिरिट थी घर पहुंचने की, और ऑलरेडी उनके अंदर ये टैलेंट था कि वो ऐसी सिचुएशन को फेस कर सके. ठीक है, तो ये उनकी अपनी ही स्ट्रेंथ थी जिस वजह से ही कुड फ्लाई अक्रॉस द storm clouds. अपनी खुद की वजह से ही nobody else was helping him. वो खुद ही अपनी मदद कर रहे थे. और कई बार क्या होता है, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस जब अराइज होती है, जब हम किसी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जहां से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगे, कई बार our minds start hallucinating. हम हेल्यूसिनेट करने लग जाते हैं, जो चीजें होती नहीं है वो नजर आने लग जाती है और हमें लगता है शायद ये चीज है, एग्जिस्ट कर रही है. तो ये सेम सिचुएशन पायलट के साथ भी हुई. कोई दूसरा पायलट नहीं था, कोई
दूसरा ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, ये खुद पायलट ही था जिसने अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज किया, अपने डिटर्मिनेशन को फॉलो किया एंड अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. क्लियर? So this was the mysterious black aeroplane. This was the story all about. I hope you understood this. Let's discuss about the question and answers. I will take the risk. What is the risk? क्या risk था? So I'm just writing in short. The risk was to fly through the storm clouds. ठीक है, यही रिस्क था ना कि उनको उन तूफान वाले बादलों को के थ्रू जाना था. Why does the narrator take it? और नरेटर ने ये रिस्क क्यों लिया? The narrator took the risk. The narrator took the risk as he wanted to spend his holidays with his family. और आप क्या लिख सकते हो साथ में? And also he was missing the English breakfast. All right. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane in the storm. जब narrator ने अपना plane वो storm के अंदर लेके गए, तूफान में लेके गए, तब क्या experience रहा, क्या incidences हुए वहां पे? So आप क्या लिख सकते हो? I'm just writing in short. The plane jumped and twisted in the air. Jumped and twisted in the air. All the instruments, all the instruments were dead. Okay. And what would be the last one? There was limited fuel in the fuel tank. All right, I've just written points. Children, kindly write this answer in an elaborative way. Clear? I've just given you some points. उनको paragraph form के अंदर आपको लिखना है. Clear? Why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? Narrator ये क्यों कहते हैं कि मैं अपने Dakota से निकला और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, ठीक है? In fact, he said this because, I'm just directly writing the answer, he was stuck in the storm and storm with all the instruments dead and limited fuel, he was hopeless
he was hopeless if he would reach England on time. So after this, what you can write? So finally, when his plane landed safely, he was happy. Okay? और शुरुआत में स्टार्टिंग में आपको ये लाइन भी जो स्टेटमेंट दे रखा है वो भी मेंशन करना है कि दैट द नरेटर सेड आई लैंडेड एंड आई वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा. बाय मेंशनिंग और बाय सेइंग द स्टेटमेंट ही मेंट दिस और ही गिव दिस स्टेटमेंट बिकॉज उसके बाद में यू हैव टू कंटिन्यू विद सच स्टेटमेंट्स. क्लियर? What made the woman in the control center look at the narrator strangely? आखिर जो कंट्रोल सेंटर पे जो लेडी बैठी हुई थी उसने नरेटर की तरफ स्ट्रेंजली क्यों देखा? ओके, सो यू कैन राइट हियर when the narrator asked about another pilot to thank him the woman looked strangely at him because no other planes were flying that night except his. ठीक है? Why was she shocked or why did she look strangely? Because उसने बताया कि उस पायलट के अलावा और कोई दूसरा प्लेन उस रात को नहीं उड़ रहा था. क्लियर? Who do you think helped the narrator to reach safely? आपको क्या लगता है नरेटर को किसने हेल्प की सेफली रीच करने में, सेफली पहुंचने में? Discuss this among yourselves and give reasons for your answer. So हमने लास्ट में डिस्कस किया है that it was the narrator himself. Okay, the narrator himself. ठीक है? अब क्यों? You have to think about it and write your answer in that proper way. Clear, children? So these were the question and answers that were related to your text, to the story. Let's discuss the summary. अब ये जो summary है ये इन दोनों stories की combined summary है. ठीक है? His first flight और ब्लैक एरोप्लेन, इन दोनों ही स्टोरीज का जो है वो एक ही मैसेज आता है अगर हम इसको प्रॉपर्ली समझें तो. In the chapter 2 stories about flying, there are 2 stories that teach us that inner strength and determination is necessary to overcome fear. ये दोनों ही stories हमें क्या मैसेज देती है कि हमारी जो inner strength होती है और जो determination है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी तरफ के फियर को या किसी भी तरह के डर को ओवरकम करने के लिए. ठीक है? अगर हम लोग डिटरमाइंड नहीं है कि नहीं मुझे ये करना नहीं है या वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट आवर डिसीजंस कि ये मुझे करना है या नहीं करना है, करूं या ना करूं, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तो हम लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे. सो अगर कोई भी चीज करना है सबसे पहले उसके लिए आपको डिटर्मिन होना पड़ेगा. यू हैव टू टेक दैट स्ट्रांग डिसीजन कि नो मैटर व्हाट आई हैव टू डू इट. चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कोई भी ट्रबल्स आए, रास्ते के अंदर कोई भी रुकावट आए, बट मुझे ये चीज अचीव करनी है, मुझे ये गोल अचीव करना है. जब तक ये थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं आएंगे हम अपने डर को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसको
उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत है, जो हमारे अंदर छिपी होती है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और हमें उसको कोई भी अपने गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं, डिटर्मिन्ड होना है, ठीक है। दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं वो हमें लेना पड़ेगा उसके लिए। Having the courage to face tough situations helps us to overcome कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इन आवर लाइव्स। और अगर हमारे अंदर इतना करेज है, इतनी हिम्मत है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर जो कि अनएक्सपेक्टेडली हमारी लाइफ में आती है, जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते हैं, अगर हम ऐसे सिचुएशंस को एक टफ माइंड के साथ में फेस करते हैं तो हमारे लिए जो आगे के रास्ते होते हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं एंड इट इज इजियर फॉर अस कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। Clear, children? So this was all about Black Aeroplane. This was all about 2 stories about flying. I hope you enjoyed the stories as well as you got a great message. आपको एक मैसेज भी मिला है जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन देता है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने इन मैसेजेस को अडेप्ट कर लिया अपनी लाइफ के अंदर, जो ये स्टोरीज दे रही है, so nothing can stop you to get whatever you want. All right, children? So take care. We are going to meet in the next session covering the next chapter. Sorry, we have a next poem related to this. हमारी एक पोएम है इसी चैप्टर के अंदर, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। All right, till then, take care, keep learning with Winsome International School, and goodbye, bye bye.